Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Terraces Vision. Today I have brought for you a new poem that is known as The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. Yes, that's a name of which I have already taught you a poem, The Wasteland. The Wasteland depicts the characteristics and features of modern poem. And you know, the modern age was an age which suffered, the pangs and sorrows of many wars. And the most horrible among them was First World War that occurred in 1914. And this very poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, was published in 1914, entitled The Collection Prufrock and Other Observations. And when Ezra Pound read this poem, then he praised the mastery of T.S. Eliot. The Love Song of J. Alfred Prufrock, the poem, is an interior monologue. Which kind of monologue? It is an interior monologue. What is a monologue? Monologue is a poem where there is a narrator and at least one silent listener in it. But in the Love Song of J. Alfred Prufrock, Prufrock himself is listening what actually he is saying. So this situation is similar to stream of consciousness technique, where a person says something and hears also. Stream of consciousness technique was a very popular feature in modern age, and T.S. Eliot and many other writers like Virginia Woolf is one of the most famous authors who used this style extensively. Right? The Love Song of J. Alfred Prufrock represents a person whose name is Prufrock, who is going to propose his beloved. But he has some fear also in his mind. His situation becomes similar to Prince Hamlet, though he again and again says that he is not Prince Hamlet. He is an attendant lord. He calls himself that he is similar to Polonius, one that will do. But finally in the poem, we see that Prufrock returns without proposing the girl whom he loved. So this was the dilemma. This was the frustration, anxiety, dilemma of all the people of modern age. And the final and the most important quality of this poem is the fragmentation of personality. Prufrock's personality, has now been fragmented. He is thinking both from his mind and heart. दिल कह रहा है चल उनसे मिल, बढ़ते हैं कदम रुक जाते हैं, वही वाली हाल है यहाँ पे। प्रूफॉक बेचारा सोच रहा है कि वो जाए और काश ऐसा हो कि मिल करके आए उस लड़की से जिसे वो प्यार करता है, प्रपोज कर दे उसे, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो मना ना कर दे, और मना अगर उसने कर दिया तो उसकी जो दोस्ती है उस लड़की के साथ में वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बार बार वो अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, राइट, मैं चौड़ी मोड़ी के पैंट पहनता हूं, मेरे बार्ड स्पॉट है, सेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, कि क्या मैं अपने बालों को पीछे पार्ट करूंगा ताकि यहां पर जो क्या है बार्ड स्पॉट है, गंजापन है, वो ढक जाए। इन द रूम द women come and go talking of Michelangelo. प्रूफॉक ना केवल अपनी सिचुएशन बल्कि उस समय की जो हाइपोक्रेसी थी लोगों की, उसको भी लोगों के सामने लेकर के आ रहा है वो। T.S. Eliot ने he proved his talent after writing this poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock. तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका टेक्स्ट इस पोयम का, The Love Song of J. Alfred Prufrock. प्रूफॉक को लेकर कुछ ऐसी भी बातें हैं, प्रूफॉक को लेकर कुछ इस तरीके से भी चीजें हैं। क्या होता है कि प्रूफॉक का जो नाम है वो इस तरीके से होता है कि जी प्रूफॉक
बना हुआ है दो वर्ड से। एक तो है प्रूडिस्ट, एक ऐसा इंसान जो क्या है, कुछ कह नहीं से पा रहा है, उसकी हालत कैसी है कि वो कुछ कह ही नहीं सकता है, शर्मा रहा या जो भी चीजें हो, ठीक है, उसे कॉन्फिडेंस नहीं है या ईगो है। और दूसरा है फ्रॉक, फ्रॉक जो कि क्या है, फेमिनिस्टिक क्वालिटीज हैं। फेमिनिस्टिक क्वालिटीज हैं किसकी, इंसानों की। इस टाइप की फ्रॉक एक कैसा है, विमेन के लिए पहनने का कपड़ा, उस तरीके की चीजों से वो अपने आप को इस तरीके से है वो फ्रॉक, राइट। अब इस पोयम के एपिग्राफ पर आते हैं। इस पोयम का जो एपिग्राफ है वो लिया गया है दांते की डिवाइन कॉमेडी, जो कि फेमस वर्क है उनका, राइट। डिवाइन कॉमेडी 3 भागों में बटी है और उसका पहला ही भाग है इन्फर्नो। तो इन्फर्नो के कैंटो 27 से, राइट, कहां से, कैंटो 27 से जब दांते उस जगह पर गए हैं और उनकी मुलाकात हुई किसे, गीडो डा मॉन्टीफेल्ट्रो, देखिएगा स्पेलिंग GUIDO डा मॉन्टीफेल्ट्रो, मॉन्टीफेल्ट्रो, इनसे मुलाकात हुई है, जो कि अपना कुछ बताने के काबिल नहीं है, राइट। यहां पे इन पोयम का ट्रांसलेशन नहीं है, यहां पर वही बातें की जा रही हैं क्योंकि ये पोयम लैटिन भाषा में लिखी गई है। तो दांते जो हैं वो गीडो डा मॉन्टीफेल्ट्रो से पूछते हैं कि बताओ असलियत क्या है, क्या है सच्चाई, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या है तुम्हारा राज। लेकिन गीडो जो है उसे डर है, वो बता नहीं पा रहा है कि असल में उसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन अब जैसा कि वो शायद हेल में है तो वो अपनी सच्चाई जो इसने वो सब कुछ छिपा के रखा हुआ था सबसे, वो दांते को बताने के लिए तैयार हुआ है। और यही सिचुएशन है किसकी, फ्रॉक की। वो इतना डर में है, इतना फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिलेमा में चल रहा है कि वो अपनी बातें कही नहीं पा रहा है। He has not the strength and courage to express himself and become Airtel. No, है ही नहीं कुछ उसके पास इस टाइप का। तो ये है इस पोएम का एपिग्राफ। आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर। देखिए सबसे पहली लाइन, लेट अस गो देन यू एंड आई। तो यहां पर कोई जो यू एंड आई हैं वो दो लोग नहीं है, राइट। दे आर नॉट द टू पीपल, they are just the fragmented personality of a single man. Fragmented personality of a single man. वो एक ही इंसान के दो क्या हैं, व्यक्तित्व का बिखराव है बस उनका। कहता है वो लेट अस गो देन यू एंड आई। प्रूफॉक निकल चुका है प्रपोज करने अपनी बिलबेट को। लेट अस गो देन यू एंड आई, आओ हम तुम चलते हैं, हम तुम वहां कोई नहीं, एक ही इंसान है प्रूफॉक। When the evening is spread out against the sky, और कब चुना गया है समय, इवनिंग का, शाम का समय है, राइट। कौन सा समय है, शाम का। When the evening is spread out against the sky, यानी जब क्या हो जाए, आसमान में शाम हो गई हो। क्यों, बिकॉज ही इज अफ्रेड, डर है उसे इस बात का, कहीं ऐसा ना हो कि पिटा जाए, जा रहा है प्यार की बात करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे पीटने लगे। अगेंस्ट द स्काई, और तुरंत आप देखिए, समझ रहे हैं, सिचुएशनल आयरनी का इस्तेमाल इतना बेहतरीन एलियट के द्वारा, राइट। ड्रामेटिक आयरनी एक होता है सिचुएशनल आयरनी कि तुरंत ही, ठीक है, कैसे कह रहा है, लाइक अ पेशेंट इथरिस अपॉन अ टेबल, खटाक से एकदम से तुरंत से क्या किया उसने, कंपेरिजन कर दिया किसका, इस आसमान का। कैसे, लाइक अ पेशेंट इथरिस अपॉन अ टेबल। इथरिस्ट मींस क्या, साइंटिफिक इमेजरी, ईथर, साइंटिफिक इमेजरी का इस्तेमाल करा एलियट, कह रहा है अगेंस्ट द स्काई, जैसे क्या हो, आसमान में शाम फैल गई हो, और क्या हुआ, लाइक अ पेशेंट इथरिस अपॉन अ टेबल, जैसे कि क्या हो, एक पेशेंट मरीज लेटा हो, कहां पर, टेबल पर। इस तरीके से साइंटिफिक इमेजेस का इस्तेमाल। सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। हमें लगा कि शाम के बारे में अभी तक बात और कुछ बताएगा, लेकिन वहां पे तुरंत क्या किया उसने, लाइक अ पेशेंट इट इज अपॉन अ टेबल, अलग से पूरा एकदम से सेंस ही चेंज कर दिया। आगे देखिए, कह रहा है लेट अस गो, आओ चलते हैं हम दोनों, कोई दो नहीं है, अकेला ही बंदा है। लेट अस गो
थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट। हाफ डिजर्टेड का मतलब आधे लोग हो, जहां पर कैसे लोग, आधे लोग, और बाकी क्या हूं, शाम का समय है तो लोग अपने घरों में पहुंच गए हों, यानी कि मुझे कोई देख ना पाए यहां जाते हुए। कैसे, हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स, गलियां कैसी हो, हाफ डिजर्टेड, यानी लोग अब अपने घरों में पहुंच गए हों। और क्या, द मटरिंग रिट्रीट्स, और क्या मैं देखता हूं, मटरिंग रिट्रीट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टीएस एलियट का, समझ रहे हैं क्या है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जो कि उन्होंने टर्म को कॉइन किया कहां पर, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। और उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, इंसान का जो माइंड है, ठीक है, जैसी मनोदशा हो वैसी सामने की चीजें भी दिखाई पड़े। द माइंड मस्ट हैव एन एसोसिएशन विद द थिंग्स विच ही इज सीइंग, विच इट इज सीइंग। प्रूफा को आप देखिए बिल्कुल बेहतरीन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का नमूना पेश करते हुए द मटरिंग रिट्रीट्स आगे देखता है, बढ़ करके देखिए, मटरिंग रिट्रीट्स, लोग क्या कर रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, सो रहे हैं और मटर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ। द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स, तुरंत कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। रेस्टलेस नाइट नहीं है बल्कि कौन है, मटर करने वाले लोग हैं, बेचैन हैं वो रातों में। इन वन नाइट चीप होटल्स, और मजबूर हैं रातें बिताने के लिए कहां पर, चीप होटल्स में, सस्ते घटिया होटलों में। और होटल्स कैसे, एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स, राइट। सॉडस्ट क्या होता है, लकड़ी का बुरादा, अगर आप जानते हो, उसको काटने पर जो निकलता है चूरन टाइप का, वही। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स, ये रेस्टोरेंट्स जो है वो कैसे हो गए हैं, सॉडस्ट, धूल पड़ी है दिन भर और खूब सारी धूल आकर के यहां पे फैल चुकी है नीचे। और कैसे, विद ऑयस्टर सेल्स, ऑयस्टर सेल्स आप जानते होंगे, घोंगा जो टाइप का होता है, ठीक है, ऑयस्टर आप देखेंगे बालू में, रेत में शंख टाइप का निकलता है, हम लोग शंख कहते थे उसे, बजाते भी थे। ऑयस्टर सेल्स यानी धूल, और ये लकड़ी के बुरादे सब कुछ धूल से क्या हो चुके हैं, वो आकर के इस रेस्टोरेंट में फैले हैं और लोग यहीं पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये आलम है मॉडर्न एज की, ऐसी हालत हो चुकी है इंसान की। विद ऑयस्टर सेल्स स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक टीडियस आर्गुमेंट्स, यानी प्रूफॉक के मन में क्या जो उलझन बनी हुई है, उसी तरीके से उसे गलियां दिख रही हैं, दैट फॉलो लाइक टीडियस आर्गुमेंट्स, जैसे क्या हो, टीडियस मींस थकाऊ, एक ऐसी बहस जिसका कोई अंत ही ना हो, थका देने वाली हो, पका देने वाली हो, उस तरीके से गलियां क्या हैं, उलझी हैं अपने आप में, टीडियस आर्गुमेंट के जैसा, एकदम परेशान कर देने वाली। ऑफ इंसिडियस इंटेंट, और कैसा, इंसिडियस इंटेंट, जैसा क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यानी जिनका जो इंटेंशन है वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है। टू लीड यू, कि मैं आपको ले चलूं कहां पर, टू एन ओवर ब्लेमिंग क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो मेरे मन में क्या हो रहा है, ओवर ब्लेम, उभर कर करके आगे आ रहा है। टू लीड यू टू एन ओवर ब्लेमिंग क्वेश्चन, लेकिन डॉट डॉट डॉट, क्या बताऊं, बता ही नहीं सकता। टू लीड यू टू एन ओवर ब्लेमिंग क्वेश्चन, चलो मेरे मन में क्या है, इंटेंशन, मेरा इरादा बढ़ता जा रहा है, टू लीड यू टू एन ओवर ब्लेमिंग क्वेश्चन, कि मैं आपको एक ओवर ब्लेमिंग, अमादा जो सवाल हैं उनकी ओर मैं आपको लेता चलूं। अब आगे देखिए, कह रहा, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इट इज, लेकिन मत पूछो कि है क्या। ओ डू नॉट आस्क व्हाट इट इज, मैं बता नहीं सकता, मेरी हालत गिल्डो डी मॉन्टीफेल्टो जैसी हो चुकी है, मुझसे बताया नहीं जाएगा। कह रहा है, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इट इज, मत पूछो कि क्या है ये, नहीं बता सकता। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट, चलो आओ चलते हैं और मेक आवर विजिट, अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, राइट। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। अब आगे देखिए, बहुत ही फेमस लाइंस लिटरेचर की, इन द रूम द विमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, समझ रहे हैं क्या है, ये एल्यूजन है, क्या कर रही हैं औरतें, इन द रूम द विमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, कमरा है, महिलाएं आ जा रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो। इसका मतलब क्या है, बहुत फेमस ये एक सटायर है कि द विमेन देयर
have no any interest in Michelangelo. They just have the showiness. They just have the sophistication. वो बस माइकल एंजेलो के बारे में बात करके बताना चाहती हैं कि उन्हें क्या है, बहुत कुछ आता है। कभी आप होते हैं ऐसे लोग, आप मिल जाइए, दुनिया भर की बातें आपको बताने लगेंगे, ये है वो है, ताकि आप जान सकें कि हाँ ये तो बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। होता ना कि जो क्या होता है, फटे ढोल की तरीके से चिल्लाते हैं, ये आलम हो जाता है। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो के बारे में बात करती जा रही हैं, वो कोई बात नहीं कर रही हैं, उनको बस दिखाना है कि लोग उनको क्या करें, सोफिस्टिकेटेड समझें। हमारे आसपास एक जो है महिला थी जो अपने बच्चों को कहती थी, आओ बेटा तुम्हारी नोज पोंछ दें, आओ बेटा तुम्हारी नोज पोंछ दें। ये हालत होता है। कुछ हमारे तरफ गांव के जो है बच्चे थे, वो जो है एकदम से हाँ मूड पिरा रहा था, समझ रहे हैं, संभाल के पकड़ो, अड़ा ना जाए, ऐसी सी बातों का इस्तेमाल करना। खड़ी बोली बोलें, कहीं ऐसा ना हो कि उनको लोग गांव का गंवार समझ लें, लेकिन दिखावा जरूरी होना चाहिए, राइट। टी.एस. एलियट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है इस चीज को लेकर के। आगे देखिए, द येलो फॉग, शाम का समय है, येलो फॉग, ठीक है, फॉग आप जानते होंगे, धुंध जो होती है पीले रंग की हो गई है, किससे, प्रदूषण से। दैट रब्स इट्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। क्या हो चुका है, शाम का समय है और येलो रंग का जो धुंध है वो अपनी बैक को, पर्सोनिफिकेशन है बार बार, अपॉन द विंडो पेन्स, खिड़कियों पे जो कांच लगे हुए हैं वहां पर अपनी बैक को रब कर रहा है। आगे देखिए, द येलो स्मोक, और जो धुआं है, दैट रब्स इट्स मजल, मजल क्या होता है, नथुने, बिल्ली को आप देखेंगे आगे मूछ निकली रहती, वही है, इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स। और क्या वो, ठीक है, जो येलो स्मोक है, धुआं है, वो भी क्या हो रहा है, विंडो पेन्स पे अपने क्या कर रहा है, इसको लड़ा रहा है, किसको, ठीक है, मूछों को, नथुनों को। लिक्ड इट्स टंग, चाट रहा है, किससे, अपनी जीभ से, इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, शाम के समय जो कोने हैं हर तरफ वो जा रहा है, इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, हर जगह पर्सोनिफिकेशन है। लिंगर्ड अपॉन, मंडरा रहा है, किसके, अपॉन द पूल्स, तालाब के, दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, जो नालों पर है, ठीक है, नालों पर जो पानी जमा हुआ है उसके ऊपर मंडरा रहा है, ये कौन, येलो फॉग। लेट फॉल अपॉन इट्स बैग्स, और इसने क्या किया, अपने बैग को गिरने दिया। द सूट, सूट क्या होता है, ईंट भट्ठे से क्या होता है, जब काले रंग का आप देखते हैं क्या होता है, धुआं टाइप का निकलता है और नीचे फैल जाता, वही क्या होता है, सूट। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, और क्या कर रहा है, गिरने दे रहा है, कहां पर, अपनी बैक पर, किसको, सूट को, जो चिमनी से नीचे गिर रहा है। स्लिप्ड बाय द टेरेस, देखो छत से नीचे आ रहा है। मेड सडनली, अचानक से उछल करके। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और ये देख करके कि ये क्या है, अक्टूबर की रात है। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस, क्या हुआ, कर्ल्ड मींस घुंघराला बन गया, घूम रहा है। वंस अबाउट द हाउस, कहां पर, घर के आसपास। एंड फेल अस्लीप, और फाइनली क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है, जो कोहरा था, ठीक है, ये धुआं है, वो इस तरीके से कर्ल करते 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 नीचे जमीन पर आ गया, राइट। तो टी.एस. एलियट यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस को, और सारी नेगेटिव इमेजेस हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अक्टूबर हो, आप देखेंगे यहाँ पर DTR वर्ड्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, DTR, हार्श साउंड बार बार क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में फिर से मिलेंगे और इसके आगे लाइंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।